আমি বাংলায় কই, বাংলায় কই। তো যদি এটা এই প্রশ্নটা সবার মনেই আসে যে ইলেকশনের বেশি সময় নেই তো কি করে আম আদমি পার্টি বিস্তার করে। আমি একটা উদাহরণ দিই, এবং আমি উদাহরণ দেওয়ার জন্য দিল্লি বা পাঞ্জাব বা নর্থ ইন্ডিয়ার উদাহরণ দেব না, আমি আমাদের নর্থ ইস্টের উদাহরণ নিই। নর্থ ইস্টে গুয়াহাটিতে যে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ইলেকশন হয়েছিল তার ঠিক 3 মাস আগে আম আদমি পার্টি ওখানে কাজ শুরু করে, রাজেশ শর্মাজির নেতৃত্বে ওখানে কাজ শুরু হয়। এবং আপনাদের কিছু ডেটা দিতে চাই যে 3 মাসের ভেতর মানুষের মাঝখানে আম আদমি পার্টি এরকমভাবে স্প্রেড করে গেছিল যে আম আদমি পার্টি 60টা সিটের ভেতর 38টাতে ক্যান্ডিডেট দিছে, এবং 38টার ভেতর আম আদমি পার্টি একটা সিট জিতছে, এবং 24টা সিটে আম আদমি পার্টি দ্বিতীয় নাম্বার হচ্ছে। এর মানে 2/3 কাছাকাছি বা তার বেশি সিটে আম আদমি পার্টি মানুষের কাছে অল্টারনেটিভ হিসেবে অপশন দাঁড়িয়ে গেছে গুয়াহাটিতে। গত পরশু দিনে আগের দিন একটা ওপিনিয়ন পোল, কটন ইউনিভার্সিটি, কটন কলেজ, কটন ইউনিভার্সিটি আমরা গুয়াহাটির রেসপেক্টেবল ইউনিভার্সিটি হিসেবে জানি, এবং আরেকটা মিডিয়া হাউস মিলে পুরো আসামে, এটা তো আমি গুয়াহাটির এক্সাম্পল, পুরো আসামে সার্ভে করার পর ওনারা সার্ভের যে রেজাল্ট দেখালো ওতে প্রায় 39 না, মানে 38% বিজেপি, 30, হ্যাঁ, তো 39% বিজেপি পাইছে, এবং দ্বিতীয় নম্বরে আম আদমি পার্টি 31%, আর বাকি সব পার্টি 10, 12, 7, ওখানে যে এখন অ্যাসেম্বলিতে মেইন অপোজিশন পার্টি কংগ্রেস পাইছে 7%। তো এর মানে যে পার্টিটা গুয়াহাটি মিউনিসিপ্যাল ইলেকশন হয়েছে বেশি দিন হয় নাই, তার 3 মাস আগে আসামে পা রাখছে, সেই পার্টি আজকে 4 মাস 5 মাসের ভিতর ওপিনিয়ন পোলে মানুষের মাঝখানে, মানুষের মনের মাঝে জায়গা বানাচ্ছে। এটার জন্য একটা কারণ আছে। কারণটা হলো যে দিল্লির যে মডেল, অরবিন্দ কেজরিওয়ালজির যে সারা ভারতবর্ষ না সারা পৃথিবীতে যে পপুলারিটি, শুধু ইন্ডিয়া না বাইরের দেশের লোকেরাও এসে দিল্লি মডেলটা দেখতে আসে। তো দিল্লির আমাদের যে আম আদমি পার্টির যে কাজ এবং অরবিন্দ কেজরিওয়ালের যে লিডারশিপ, সেটার ওপর শুধু দিল্লি না সারা ভারতবর্ষই একটা অ্যাকসেপ্টেন্স আছে মানুষের মাঝখানে, এবং এটা আসামের মানুষের মাঝখানে ছিল অলরেডি। আম আদমি পার্টি সংগঠন শুধু একটু নিজেকে শুরু করছে, মানুষের মনে অলরেডি আছে আম আদমি পার্টি, ওইটা কানেকশনটা হয়ে গেছে। তো আমি আশা করি, এটা আমি বাইরের উদাহরণ দেই নাই, শুধু নর্থ ইস্টের উদাহরণ, আমাদের ত্রিপুরাতে আমরাও যখন সার্ভে করছি, বিভিন্ন জায়গায় কথা বলছি, মানুষের মনে অলরেডি আম আদমি পার্টি আছে। এখন আমাদের দায়িত্ব হলো পার্টির তরফ থেকে, পার্টির সংগঠন থেকে, যে আমরা প্রত্যেকটা বাড়িতে পৌঁছাই, তাতেই মানুষ অটোমেটিক আমাদের দিকে আসবে। তো আপনারা আগামী দিনে একটা মিরাকল দেখতে পাবেন আম আদমি পার্টি। थैंक यू। मित्रों को और त्रिपुरा की पूरी जनता को मेरा नमस्कार। आज आम आदमी पार्टी त्रिपुरा में औपचारिक रूप से अपना संगठन विस्तार का काम आरंभ कर रही है। आज हमने सभी 8 जिलों से हमारे जिला इंचार्जेस नियुक्त किए हैं, और 4 लोगों की एक समिति हमने बनाई है जो इन 8 जिलों में हमारे संगठन विस्तार का जो काम है उसका देखरेख करेगी। हमारा पहला कदम होगा कि हम लोग पूरे त्रिपुरा में सदस्यता अभियान चलाएं, और त्रिपुरा की जनता से हम अनुरोध करते हैं कि त्रिपुरा को भ्रष्टाचार मुक्त और हिंसा मुक्त प्रदेश बनाने के लिए, त्रिपुरा की सामग्रिक उन्नति के लिए, त्रिपुरा के विकास के लिए, त्रिपुरा की मूलभूत जो समस्याएं हैं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और भी लोगों की जो मूलभूत समस्याएं हैं, त्रिपुरा को ड्रग्स फ्री करने के लिए आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ें। मैं त्रिपुरा की जनता को और एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी पूरे जोर शोर से और पूरी ताकत के साथ त्रिपुरा में आएगी,
और त्रिपुरा की जनता की चाहत को देखते हुए बहुत सारे लोगों के हमारे पास फोन आते हैं। बहुत सारे जो सम्मानीय व्यक्ति हैं, प्रभावशाली व्यक्ति हैं त्रिपुरा के, उन्होंने हमसे संपर्क किया पिछले दिनों, और उनकी बातों से हमें ये लगता है कि त्रिपुरा के लोग भी विकल्प चाहते हैं। त्रिपुरा के पास आज के दिन में कहा जाए तो विपक्ष है ही नहीं, कहीं ना कहीं एक छत्र साम्राज्य चल रहा है। उसको लेकर लोगों में बहुत असंतोष है। कहीं ना कहीं लोगों को ये भी लग रहा है कि उनकी जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं, वो अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का भी सही तरीके से उनको लोकतांत्रिक अधिकारों की तरफ से जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। इसलिए त्रिपुरा की जनता में आक्रोश है, वो भी बदलाव चाहते हैं। त्रिपुरा की जनता चाहती है कि यहाँ भी दिल्ली की तरीके से एक विकास का मॉडल आए। दिल्ली में जिस तरीके से उन्नति के काम हुए हैं, लोगों की ये काम हुए हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ आए। तो आम आदमी पार्टी अब जोर शोर से उसके लिए काम करेगी। हम त्रिपुरा की जनता से अनुरोध करते हैं कि भारी संख्या में आप लोग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़िए। हमारे जिले में अभी हम सदस्यता अभियान चलाएंगे, उनमें आप लोग जुड़िए, और जुड़ने के बाद हम लोग मिलकर एक नया त्रिपुरा, एक सुंदर और सोनार त्रिपुरा गढ़ने के लिए हम लोग आगे आएंगे। बता देता हूँ आप लोगों को, इसमें जैसे हमने नॉर्थ त्रिपुरा से मोहितूर जी हैं, उन्नाकोटी से सुमंत देवनाथ जी हैं, ढलाई से नीता देवी चकमा जी हैं, खोवाई से मोहनजीत पाल, त्रिपुरा वेस्ट 1 से सिप्रा दास। हमें त्रिपुरा वेस्ट को 2 भाग में कर दिया हमारी सुविधा के लिए। त्रिपुरा वेस्ट 1 में सिप्रा दास, वेस्ट 2 में रंजीत दत्त, सिपाही जाला में सुदीप्त सिन्हा, गोमती में प्रदीप शील, साउथ त्रिपुरा में विश्वजीत मित्रा। ये हमारे जिले के इंचार्ज होंगे जो लोग इस अभियान को, सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाएंगे। और इनके ऊपर जो 4 हमने जो जोन के इंचार्जेस रखे हैं, नॉर्थ त्रिपुरा में सुमंत देवनाथ, ढलाई में नीता देवी चकमा, त्रिपुरा वेस्ट 1 और वेस्ट 2 के लिए शक्ति दे, और सिपाझाला, गोमती और साउथ त्रिपुरा जोन के लिए सुमन लश्कर। तो ये 4 हमने जोन इंचार्जेस बनाए हैं। अब इस सदस्यता अभियान को काफ़ी जोर शोर से हम लोग चलाएंगे। उसके बाद फिर से आप लोगों के मुखातिब होंगे। फुल फ्लेजेड कमेटी सदस्यता अभियान कंप्लीट होगा। हम लोग 1 महीने का सदस्यता अभियान चलाएंगे। उस सदस्यता अभियान में लोगों का रिस्पॉन्स किस तरीके का है, कितने सारे लोग आ रहे हैं आगे बढ़कर, और कैसे कैसे लोग आ रहे हैं, फिर सारी एक विस्तृत समिति बनाएंगे। जब तक पूरे हर जिले का अच्छे से रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, तब तक केंद्रीय समिति बनाना संभव नहीं है। तो सभी जिले के लोग जब आ जाएंगे तो उनके साथ बैठ के कमेटी बनाएंगे। मैं सुमंत जी और शक्ति देव जी से थोड़ी बातें